Uh, a very good afternoon to all the guests and dignitaries. As your host for the worldwide webinar on the art of public speaking, I, Khushi Rai, would like to take this opportunity to extend a hearty greeting to each and every one of you. It gives me a great pleasure to extend a warm hello to each and every one of you gathered here today, and a huge honor for us to have someone of this caliber there whose involvement on this topic adds so much value to it. Transforming self doubt into self confidence is a journey that begins with small, actionable steps. Start by setting achievable goals and celebrating each success, no matter how minor. Surround yourself with supportive individuals who uplift and believe in you. Visualize your success and reframe any negative thoughts into positive statements. Before I proceed further, let me take a brief moment for the introduction of my organization. SEMS Welfare Foundation, a registered non-profit organization, is dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly Particular skill skill development and development and entrepreneurship. entrepreneurship. Can you mute yourself, please? Done, Kushi. You please start. Okay. Continue. Though our initiative DigiSaksham, we have created training programs in IT, finance, retail, and entrepreneurship, impacting over 6,000 individuals. We are currently upskilling inmates in Haryana jails and collaborating with universities and colleges. We have also partnered with banks to place over 1,500 candidates in jobs. Families, another SEMS initiative, empower women through workshops and stories of successful female entrepreneurs. We conduct programs on digital literacy, marketing, and career development, reaching over 1,000 women across multiple states. This initiative recently reached a milestone of 100 women actively involved. In just a short time, SEMS has established as a force for positive change, equipping individuals with skill for employment and promoting women's leadership in various industries. Now, let me take this wonderful session to publicly present and welcome Mr. Ajay Yadav, the keynote speaker of today's international webinar. Mr. Ajay Yadav, the youngest public speaking coach and a corporate trainer, has transformed the communication skills over 10,000 individuals, both online and offline. He has been featured over 10 news outlets and has conducted more than 50 online workshops. Ajay Sir's program covered essential skills like networking, team building, corporate communication, sales techniques, and public speaking, empowering participants to confidently navigate the corporate world and foster personal and professional growth. There are many gems and diamonds in the world, and one of them is here today to help us to build this event. With this note, I, Khushi Rai, on behalf of SEMS Welfare Foundation, would like to give my heartiest welcome to Mr. Ajay Yadav, sir, with a huge round of applause for joining us today. Your presence has added the significance of this event, and we are genuinely honored to have you. सबसे पहले मैं सेम्स वेलफेयर फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे कंसीडर किया एंड अपने फाउंडेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ आपके साथ एंड लोगों को मैं कुछ सिखा पाऊँ। उसके पहले मैं अभी अपने बारे में थोड़ा से बताता हूँ। मेरा नाम है अजय यादव, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैंने अभी बहुत ही कम एज में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 5,000 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन में ट्रेन कर चुका हूँ। तो ये सारी मेरी अचीवमेंट है और मेरी एज अभी जस्ट 17 है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि आप सबके साथ आया हूँ एंड कुछ ऐड कर पाऊंगा आपके लाइफ में वैल्यू। देखो, अगर हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए अच्छा तब होगा जब हम दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। एंड मेरा बचपन से ही कुछ ऐसा ख्वाब था कि इच्छा थी कि हाँ यार, जैसे लोग करते हैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और लोग मुझे बहुत ज्यादा ड्रीम था कि लोग मेरे साथ आए, मैं उनको सिखाऊं, मैं उनको बताऊं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं। और आज फाइनली, आज नहीं, मैंने पिछले 1 सालों से ये सारे ड्रीम्स मेरे कंप्लीट होते चले आए हैं और आज मैं आप सबके बीच भी आया हूँ। तो सबसे पहले मैं वेलफेयर वेलफेयर फाउंडेशन को सिम्स वेलफेयर फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहूंगा एंड रिम्पा मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझसे रीच आउट किया लिंक्डइन पे और मेरे साथ कोलैब किया। और आप सब सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज रियल में कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। क्या
द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो जान सकता है। जितना वो जान जाए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा अपनी बैकअप स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास 8 9 में था तब मुझे बोलना नहीं आता था। उस टाइम मुझे मतलब कि लोगों से मैं बात नहीं कर पाता था, अपने यहाँ तक कि अपने टीचर से मैं क्वेश्चन तक पुट अप नहीं कर पाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं कोचिंग भी करता था 2 2 जगह, एंड मैं स्कूल भी जाता था, लेकिन तब भी मैं नहीं बोल पाता था। नंबर अच्छे आ जाते थे वो अलग बात है, लेकिन नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा डर था कि लोगों से कैसे बात करूं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता था। फ्रेंड कब बनेगा? जब आप उससे बोलोगे, और मेरे उससे वो होता नहीं था। तो ये सारी चीजें थी, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यार मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। और जब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकला, यूट्यूब पर देखा, गूगल पे देखा, तो मुझे कुछ ट्रेनर्स मिले, मुझे कुछ कोचेज मिले। मैंने उससे सीखना शुरू किया, और आज मैं ग्रेजुएशन में हूँ, और आज मैं हजारों लोगों को सिखा रहा हूँ। जो मैं नहीं कर पाता था, आज मैं उनसे उनको करवा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। और आज मैं वो भी करके दिखाया। आज लगभग 10 से ज्यादा ट्रेनर्स के साथ वर्क करता हूँ। बहुत सारी चीजें मतलब कि अचीवमेंट है। तो अभी उससे पहले वो तो अलग भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, इंट्रोवर्ट पर्सन होने की, ना बोलने की, डर की, स्टेज फियर की, तो क्या आपके पास है पब्लिक लोगों से डर का, स्टेज फियर का, बात करने का? अच्छा, कितने लोग हैं कि जो कि इंट्रोवर्ट पर्सन है? थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताओ, हाउ मेनी पर्सन इज इंट्रोवर्ट? कितने लोग हैं? एक बार कमेंट में मुझे बताओ प्लीज मैम। कमेंट सेक्शन ओपन कर दीजिए आप, जिससे कि लोग कमेंट कर पाए। तो एक बार मुझे कमेंट बताओ कि कितने लोग हैं जो कि डरते हैं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने में, या स्टेज फियर उनके पास है, या उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा डर रहता है कि यार कोई मुझसे बात करेगा, कैसे बात करूंगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहें जैसे कि उनको क्वेश्चन, मतलब कि मान लो कि कॉलेज में आप हो, ठीक है। मैं तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि बहुत सारे लोग कॉलेज के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, जो कि इंटर्नशिप वाले। तो बहुत सारे लोग होंगे ना कि अगर आप उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दिया जाए, तो वो गए, प्रेजेंटेशन लिए, और स्टेज पे जाने से पहले, 1 मिनट जाने से पहले, उनका सब माइंड ब्लैंक हो जाता है ना। अच्छा, 2 लोगों ने बोला, राहुल जी वाओ, सम्राट। आज मैं आप सबको बिलीव दिलाता हूँ कि अगर आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया, आपके अंदर आज से ही पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, लोगों से बातें करने का जो डर है, जो स्टेज फियर का डर है, वो आज से ही दूर हो जाएगा। तो आर यू रेडी? कितने लोग आप में से रेडी हैं मुझे बताएं कमेंट में। यस यस यस, जल्दी जल्दी। यस, राहुल जी बोल रहे हैं यस। देखो, यस 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 यस, जल्दी जल्दी। देखते हैं सबसे फास्ट कौन करता है ना। यस, सम्राट जी, केविन जी, यस यस यस। ओके, उसके पहले मैं आगे चलूं, एक बार मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। और हमारा सेशन 1 आवर का लगभग लगभग है। एक स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी क्या सुनाता हूं, मैं एक एक्टिविटी करवा लेता हूँ। आप में से सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लें एक बार जल्दी से। एक एक्टिविटी करते हैं हम सब लोग। एक्टिविटी, एक्टिविटी है ना। सभी लोग एक बार कैमरा ओपन कर लीजिए, सब लोग। माइक मत ओपन करिएगा, बस कैमरा ओपन करना है ना। या रेडी रेडी, जल्दी जल्दी। देखते हैं कितने लोग आज पैशनेट हैं कुछ सीखने के लिए, अपने लाइफ में कुछ बदलाव करने के लिए, है ना। कुछ बदलाव करना है अपने लाइफ में, कुछ बदलना है, चेंजेस लाना है जहाँ पे आप हो। जल्दी से कैमरा ओपन कर लिए, मैं एक एक्टिविटी करते हैं। या बहुत सारे लोगों ने ओपन किया। ओके, मैं आप देखो, आपको लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड के नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे रखना है इधर। एंड मैं जैसे 1 2 3 बोलूंगा, आपको ऐसे ऐसे, है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे रखना है। जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपको एक तालियां मारनी है अपने हाथ के नीचे, है ना। रेडी? दिख नहीं रहा सबका हाथ यार? दिख नहीं रहा है ना? सब लोग कर लिए? रेडी? 1 2 3। क्या हुआ भाई? मारो मारो। 1 2 3, तेजी से मारो। ऐसा मारो मारो कि लगे कि हाँ यार मैंने कुछ किया। ऐसा नहीं है कि ऐसे आराम से, ऐसा नहीं करना है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। सर कुछ नहीं 1 2 हुआ। 3। ओके, कुछ नहीं होता अभी सर। जितने लोगों ने किया, लगा कि ऐसा कुछ कर रहा हूँ, लगा। ओके, यस यस, जितने लोगों ने किया, मैं आपको बताऊं, जेन्युइन में वो आज कुछ सीखने आए हैं। और तो और, मैं एक्टिविटी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि लोग खुद तो ऑफ रहते हैं, अपने बगल वाले को भी ऑफ कर देते हैं, है ना। खुद ऑफ रहते हैं, बगल वाले को भी ऑफ कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करो भाई, आप खुद ऑफ हो और बगल वाले को ऑफ कर दो। अपनी स्विच ऑफ, जो माइंड का स्विच है ना, माइंड बंद है, उसको खोलो तो कुछ सीखने को मिलेगा।
या वात्सला, यस सर। ओके, आज इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं उसके पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जानेंगे और क्या क्या सीखने वाले हैं। जबरदस्त क्लास होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको इंक्लूड करने वाला हूँ। सो देखिए, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है, हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। अच्छा, मैं और जब इस चीज बताता हूँ। अगर मैं कभी कभी सेशन लेने जाता हूँ, ठीक है, जैसे ऑफलाइन हो गया या किसी स्कूल में गया या कहीं कहीं कॉर्पोरेट में गया, तो वहां बोर्ड पे बोलते हैं कि सर पब्लिक हमें बोलना आता है, इसकी नीड क्या है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको रियल में बोलना आता है, बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बोलना आता है। बोलने का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जिसको पता हो कि कहाँ पर मुझे बोलना है और कहाँ पे मुझे चुप रहना है। वही एक अच्छा स्पीकर होता है। एक चीज हम और सीखेंगे, बेनिफिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का बेनिफिट क्या है ना। अगर हम बेनिफिट नहीं जानेंगे, अगर मुझे पढ़ना है आज तो मैं क्यों पढ़ूंगा, लेकिन अगर उसको मुझे पता रहेगा कि मुझे अचीवमेंट क्या होगा तब मैं पढ़ूंगा। एक चीज और जानेंगे कि जैसे होस्टर बहुत सारे पब्लिक स्पीकर हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, बहुत सारे जो कि गांव में होस्टिंग करते हैं, जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम, वो फेल क्यों हो जाते हैं। या हम जाते हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन देने, तो हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे पाते, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है। बैरियर ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, 30 टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जो आपको कंटेंट देने वाला हूँ। इसमें से जो 30 टिप्स है ना, अगर आप उसको यूज किए अपने लाइफ में, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज नहीं जब मैं फिर से आपसे मिलूंगा कभी, तो आप बोलोगे कि हाँ यार से जबरदस्त क्लास थी। और यही सी क्लास को जो मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही कंटेंट मैं शेयर करता हूँ अपने पेड क्लासेस में। आज हम जबरदस्त चीजें सीखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो कि हम किसी ग्रुप में के साथ कहीं बैठते हैं या अपने मतलब दो या दो से अधिक लोगों के साथ जब हम बातें करते हैं, देन वो हमारा पब्लिक स्पीकिंग हो जाती है। और जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर बोलते हैं, और तो अगर वन टू वन बात करें, देन वह कन्वर्जन है, कन्वर्सेशन है हमारा, कि बात करें एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर हम कई लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कई लोगों के साथ अपने विचारों को ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे, तो हम समझ लो कि पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। मान लो कि आप क्लास में बोल रहे हो, क्लास में आप गए हो एक क्वेश्चन को समझाने, या आप कहीं पे जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने, कहीं पे आप मीटिंग ले रहे हो, देन वह पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आता है। इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। नंबर वन, हम स्कूल में सेमिनार ले सकते हैं, या स्कूल में आप कॉलेज में वेबिनार ले सकते हैं। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं स्कूल में। इन चीजों को वो मतलब लेने के लिए हम वहां पर कर सकते हैं। या अगर आप एक प्रिंसिपल हैं, एक टीचर हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आप जैसे किसी फंक्शन में गए, इस टाइम तो एक ट्रेंडिंग चला है कि लोग शादियों में होस्ट बुलाते हैं, एंकर को बुलाते हैं एंकरिंग करने के लिए, तो हम वहां भी इसका यूज कर सकते हैं एज अ चीफ गेस्ट। एंड अगर आपको जॉब करते हो तो आप वहां से जाकर प्रेजेंटेशन देने में कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने में कर सकते हो, आवाज कट हो रहा एक है सर। पब्लिक स्पीकिंग का स्किल को यूज करके, ठीक है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो एज ए लीडर, मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, ठीक है। आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आजकल मोबाइल पर, आजकल रील्स पे देखोगे बहुत सारे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे, सोशल मीडिया पे पब्लिक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है ना। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो पॉलिटिक्स में, देन आप जनता को अपने मुट्ठी में रख सकते हो। मैं अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ कि जो एक अच्छा स्पीकर होता है, जो एक अच्छा स्पीकर होता है, वह क्यों एक अच्छा स्पीकर, सॉरी, एक जो एक अच्छा लीडर होता है पॉलिटिक्स में, वह एक अच्छा लीडर क्यों होता है। मोदी जी और राहुल गांधी में क्या डिफरेंट है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कमेंट में, व्हाट इज डिफरेंट क्या है दोनों में। ओके, सॉरी सॉरी, वॉइस कट हो रहा है, बट आई हैव प्रॉपर नेटवर्क, क्या ही कर सकता हूँ मैं। देखो, पॉलिटिक्स में हम इसका बहुत जबरदस्त यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जब इसको पॉलिटिक्स में यूज कर सकते, ओके 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 ओके, मैं बोल रहा हूँ कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल का यूज हम पॉलिटिक्स में कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में एक अच्छा लीडर पॉलिटिक्स में वही बनता है जो कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है, जो कि इफेक्टिव बातें कर पाता है अपने जनता से, अपने लोगों से, अपने कंट्री से। मोदी जी की मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। मोदी जी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि जनता के साथ 2 घंटे बात करनी है, तो 2 घंटे बात कर लेंगे। और जो जनता है, जो पीपल है, वो मोदी जी से 2 घंटे जुड़े रहेंगे, मन की बात करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स में लीडर हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिनका
लोग जिनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, भले ही पसंद करते हो लेकिन जिनकी बातों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इनका हम इन जगहों पे यूज कर सकते हैं बाखूबी। इसके बाद बेनिफिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग से बेनिफिट क्या होने वाले हैं इसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बेनिफिट नहीं पता होगा तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आज मैं कुछ काम करता हूँ तो हमें उसका बेनिफिट पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, उससे बेनिफिट मुझे क्या होने वाला है। अगर बेनिफिट मुझे ना पता हो तो मैं कोई भी काम नहीं करेगा। अगर भाई मुझे खाने खाने के बाद मुझे भूख लगी ही रहेगी तो मैं खाना क्यों खाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए ना, मतलब खाना खाऊंगा तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी, प्रोटीन बढ़ेगा, मेरा ब्लड बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी, मेरा भूख खत्म हो जाएगी। वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे अच्छे पब्लिक स्पीकर बनोगे। जैसे कोई भी काम काम हम करते हैं उसके पीछे का एक कारण पता होता है, मतलब कि क्या केस है इसका, मुझे क्यों करना चाहिए। अगर आपको क्यों पता है तो हम बहुत ही बाखूबी से अच्छे से उसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो बेनिफिट अब क्या है पब्लिक स्पीकिंग के, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के, हम उसको जानेंगे, है ना। या राइट 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 राइट। ये बेनिफिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, जो कि मेरे पास नहीं था, अब मुझे लगता है कि लगभग लगभग बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों के पास। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, संसार का कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। एडिसन को खुद पर विश्वास था, भले वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एडिसन को खुद पर विश्वास था कि मैं बल्ब बना लूंगा, तब उन्होंने किया। उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ही जबरदस्त था। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है ये आपको मैं धीरे धीरे आगे चल के एक से दो मतलब कनेक्ट करते हुए बताता चलूंगा कि आपको कैसे बढ़ेगा। ठीक है, क्या क्या करना होगा। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया देन इजिली प्रेजेंट योर आइडिया, जो कि मैं नहीं कर पाता था। और मुझे लगता है कि आप में से जितने लोग हो, काफी लोग इसमें प्रॉब्लम होगी कि अपने आइडियाज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। पता होता है लेकिन वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, अपने अंदर रखे रह जाते हैं। और बाद में अगर उनके बगल वाला कोई बताता है तो बोलते हैं यार ये चीजें मैं सोच रहा था लेकिन मैंने बताया नहीं। किसके साथ होता है, कितने लोग साथ होता है कि अपने आइडियाज उनके पता होते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और बाद में पता चलता है कि यार ये तो मुझे पता था लेकिन मैंने बताया नहीं। बहुत सारे लोग के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता होगा, अरे वाह मेरे साथ भी होता था। तो आप इजिली अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करना है आपको ये चीजें आती हैं। हेल्प इम्प्रूव सेल्स स्किल। अगर आप एक सेल्स की फील्ड में हैं जहां पर आपको अपने आपका खुद का बिजनेस है, या आपका खुद का कुछ मतलब सेल्स की फील्ड में सेल्समैन हो, या पर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, कोच कंसल्टेंट ट्रेनर हो, या आपको कुछ खुद का बिजनेस है, देन वहां पर आप सेल्स की स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं आज यहाँ पे हूँ, हमारे पास सेल्स के भी ट्रेनिंग होती है, तो वहां भी, और बहुत सारे लोग हमारे जैसे कोर्सेज होते हैं उनको सेल करना होता है, तो हमें वहां पर बोलना अच्छा आना चाहिए। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं देन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल्स कर ही नहीं पाऊंगा, लोग मुझसे क्लोज होंगे ही नहीं। तो अगर आप सेल्स की स्किल मतलब पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, देन आपकी जो सेल्स की स्किल होगी बहुत ही जबरदस्त होगी। अच्छा, आप दुकान पे जाते हो कपड़े खरीदने, मान लो कि आप गए एक मॉल में, जब आप मॉल में अंटर एंटर करते हो तो सबसे पहले क्या बोलता है, सर सर क्या चाहिए सर, ये अच्छा है, ये सर ये अच्छा है, ये सर ये वाला लीजिए ना बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हो, इम्प्रेस हो जाते हो, क्योंकि वो उसके पास सेल्स की स्किल है। वो आपका माइंड से समझता है कि कैसे बोलना है, कैसे इनको डील करना है, वो सारी चीजें आपके बारे में जानता है। तो आपकी सेल्स की स्किल भी यहाँ से इंप्रूव हो जाएगी। पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनल आपकी ग्रोथ होगी, पर्सनल भी होगी, प्रोफेशनल भी होगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे लीडर बन सकते हो, आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपका न्यूनी कनेक्शन बनता रहेगा, आपका न्यूनी कनेक्शन बनता रहेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 9th में था, जब मैं सीखना स्टार्ट किया यूट्यूब से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करूं, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे इंप्रूव करना होगा। मैं आपको बताऊं सिंपल सा बहुत अच्छा, मैं बहुत डरता था। मैं क्लास में जाता था, क्वेश्चन, जब मैं क्लास 9 की बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लास में जाता था मुझसे कोई कोई क्वेश्चन पूछता था कि सर बेटा एक क्वेश्चन बताओ, तो मैं खड़ा हो जाता था। मैं मतलब सोचता था यार पता नहीं सही बता रहा हूँ झूठ बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो हाँ बता दिया, गलत होगा ठीक है, सही होगा तब भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, लोगों से अच्छे से बातें करना स्टार्ट किया, तो लोग मुझसे कनेक्ट होना शुरू किए। आज सोशल मीडिया पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो और बहुत सारे
मतलब बहुत सारे अच्छे लोगों से कनेक्शन है। एज एट 17 ईयर नहीं ना, तो 17 साल का हूँ, इतने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, तो मतलब यार अलग फीलिंग आती है, हाँ यार कि मैंने कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। तो आपको नए नए लोगों से कनेक्शन ही बनता चला जाएगा। लीडरशिप स्किल भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही आएगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल के थ्रू ही आएगी। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल आ ही जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप एक अच्छे लीडर जाहिर से बात है बन ही जाएंगे। अगर आज आप नहीं है तो आप बन जाएंगे, ठीक है। आप एक अच्छे गुड लिसनर बनेंगे, आप एक अच्छे गुड लिसनर बनेंगे, आप या राइट, आप एक अच्छे अच्छे लिसनर बनेंगे। अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं तो आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर गारंटी है बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे। तो आप एक को एक अच्छा लिसनर भी बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है यार कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है? कमेंट में यस टाइप करो जल्दी से यार, जल्दी से यस 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 टाइप करो, यस। कितने लोगों को सीखने को मजा, सीखने में आज मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ यार कुछ कुछ सीखने को मजा, इससे कुछ सीख रहा हूँ आज। यस यस, रंजन जी बोल रहे हैं, कविता जी बोल रहे हैं, प्रिया जी बोल रहे हैं, यस यस, केविन जी बोल रहे हैं, यस यस यस, एंड अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? इसके बाद हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि अक्सर पब्लिक स्पीकर फेल क्यों हो जाते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम वो सीखने वाले हैं। अगर हमें पता हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम वो नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और क्यों फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है ना, फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो देखते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण लेक ऑफ प्रिपरेशन। जब वो प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, कुछ बताने जाते हैं, कुछ समझाने जाते हैं, तो उनके पास उस टॉपिक पर फुल प्रिपेयर नहीं होते हैं, फुल प्रिपेयर नहीं होते हैं। अगर आप फुल प्रिपेयर नहीं होगे तो सामने वाले बंदे को कैसे समझा पाओगे? पहली बात तो ये जानना जरूरी है। अगर आप फुल प्रिपेयर नहीं होगे तो सामने वाले बंदे को समझा नहीं पाओगे, और जब खुद समझा नहीं पाओगे तो सामने वाला बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा आपसे, फिर बोलेगा सर समझ नहीं आया। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन जो कि सबसे बड़ी कारण है कि लोगों को फेल होने का। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था 2022 में, हाँ 2022 में, तो मैं मैं दूसरों को एग्जांपल क्या दूं, अपना एग्जांपल दूं। जब मैं सिखाने आता था तो मैं सोचता था कि यार कुछ टॉपिक है बता दूंगा कॉलेज स्कूल में। जब मैं इस बात अपने प्रेजेंटेशन वगैरह देने जाता था तो मुझे या बोलते थे सर कि जाओ कुछ सिखा दो क्लास में। मतलब महीने में एक दिन टीचिंग क्लास चलती थी, तो मैं जाता था पढ़ाने, क्योंकि मुझे थोड़ा सिखाने वगैरह में ज्यादा मजा आता था। तो जब मैं जाता वहां से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता, मुझे खुद तैयार नहीं हो जाता, फिर बोलते सर आप बता नहीं पा रहे हैं, फिर सर मुझे बोलते बेटा जाओ आप जाओ उधर से, तो मैं खुद तैयार नहीं होता था, ठीक है। तो आपको लैक ऑफ प्रिपरेशन जो है, आपका तैयारी प्रिपेयर होना चाहिए आपको, तभी आप एक अच्छे फेल नहीं हो पाएंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल में या प्रेजेंटेशन स्किल में, या कहीं कुछ बताने जाए हैं तो आप फेल नहीं होंगे। स्पीकिंग टू स्लो टू फास्ट। अच्छा, कितने लोग देखे हैं एक ऐसे स्पीकर को जो कि बहुत ज्यादा फास्ट बताता चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट बताता चला जाता है या बहुत ज्यादा स्लो बताता चला जाता है? कितने लोग देखे हैं? और उनसे उनको लगता है यार कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बता रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी बता रहे हैं, को समझ नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वो आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो बहुत जल्दी जल्दी बता दिए या बहुत स्लो बता रहे हो कि लोग बोर हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक मीडियम में चलना है, और सामने व्यक्ति को, पर्सन को ध्यान में रखना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या नहीं बता रहे हो। वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। उसके बाद आप अच्छे कर से मतलब प्रेजेंट कर पाओगे। आपको अपनी स्पीच बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्पीच बहुत ज्यादा लॉन्ग कर रहे हो, आप इफेक्टिव तरीके से बता भी नहीं पा रहे हो, देन लोग आपसे बोर हो जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। तो आप अपनी स्पीच को बहुत ज्यादा लॉन्ग ना करो, शॉर्ट में रखो, अच्छे से रखो। जो एक सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा नो एनर्जी। हम आते हैं सिखाने, हम जाते हैं सिखाने, ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया। आपको ऐसा नहीं करना है। अरे आज आप ऐसे खड़े हो गए सोते हुए, ऐसे लग रहा है कि आप प्रेजेंटेशन देने नहीं आए हो, सोने आए हो, या आप बात करने नहीं आए हो, सोने आए हो। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बातें करना पड़े जो कि मतलब बहुत ज्यादा लेजी पर्सन हो, कोई भी बात करने के लिए सोचता हो, एक्टिव ना हो, उसके अंदर अच्छी एनर्जी ना हो, लो एनर्जी हो, पुअर एनर्जी हो उसके अंदर,
आप बात करना चाहोगे? नहीं बात करना चाहोगे, मुझे पता है ना। मैं ही बात करना चाहूंगा, कोई भी बात करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो नो एनर्जी, आपको लो एनर्जी, सॉरी, नो एनर्जी से बचना चाहिए। आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आपको हमेशा वेल प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। बैरियर ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, आपको थोड़ा से इसको मैं थोड़ा से जाता हूँ, आपको इग्नोर करता हूँ इसके, क्योंकि ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली ये बताना पड़ेगा मुझे, और उसको उसके अंदर मैं कवर कर दूंगा, उसको बताने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, एक इफेक्टिव तरीके से हम बात कैसे करें, ये हमें जाना जरूरी है। अगर हम इफेक्टिव तरीके से बात कर पाएंगे, देन सामने वाला व्यक्ति भी हमसे इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्टेड होगा। यहाँ कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, है ना। अगर हम सामने वाले व्यक्ति से इफेक्टिव तरीके से नहीं बात कर रहे हैं, उसको समझा नहीं पा रहे हैं, और उसके अंदर और मजा नहीं आ रहा है हमारी बातों को सुनकर, देन हम उसको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। फिर वो हमसे एक बार कनेक्ट होगा, लेकिन दोबारा कनेक्ट होने के बाद कभी नहीं कनेक्ट होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। तो सामने वाले व्यक्ति से इफेक्टिव तरीके से कैसे बात करें, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको जानना स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, हम इफेक्टिव तरीके से कैसे बातें करें, बोलें या प्रेजेंट कैसे करें, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। नंबर 1, नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को समझो। नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को समझो। आपकी ऑडियंस क्या है? आज मैं बता रहा हूँ, हमारे जितने भी सेशन होते हैं, चाहे ऑफलाइन के हो चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन के हो, चाहे फिर मैं एज अ ट्रेनर जा रहा हूँ, एज अ एंकर जा रहा हूँ, एज अ कोच जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए, या मतलब 1-to-1 सेशन हमारे हो रहे हैं, या तो मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति करता क्या है, उसका क्या, उसकी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन सी होंगी, स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, हाउसवाइफ होंगी, या मतलब कौन होंगे, तो हमें वो पता होना चाहिए। बिजनेसमैन होंगे या सेल्स पर्सन होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, कौन से हैं, हमें वो पता होना चाहिए। या रियल एस्टेट के हैं, तो हमें अपनी ऑडियंस को पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे, है ना। तो अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, नर्वसनेस इज नॉर्मल, घबराहट। अच्छा, कितने लोग घबराते हैं, नर्वसनेस। अच्छा, कितने लोग स्टेज पर जाने से पहले, या कुछ बताने से पहले, या अपने टीचर से बातें करने से पहले, या किसी से बात करने से पहले, कितने लोग घबराते हैं, कितने लोग घबराते हैं। घबराहट, नर्वसनेस नॉर्मल। देखो, नर्वसनेस आपका जो भी घबराहट है, भाई घबराना नहीं है। एक बार मुझे बताओ यार, आप सबको मैं एक तरीका देना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त, जिसके मैं यूज करता हूँ। मेरी एज बहुत कम है, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी एज बहुत कम है, मतलब 17 है, तो आप समझ सकते हो कि मैं आप सबके एज का हूँ, ठीक है। आप सबसे छोटा भी हूँ, हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सेशन में जाता हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर रहता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है मुझे, वास्तव में बता रहा हूँ। अभी मेरा एक कॉर्पोरेट सेशन था, कॉर्पोरेट सेशन में मुझे उस पर सेल्स पे ट्रेनिंग देनी थी, और उसमें मैं क्या हुआ कि भाई सभी मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कोई एम बीटेक है, कोई MBA है, कोई एमटेक है, और उनको सेल्स मुझे सिखाने जाना है। एज 2 ट्रेनर थे हम लोग, लेकिन उसमें मुझे पहले होस्ट मुझे किया गया, मुझे पहले बुलाया गया कि आप जाके बताइए, मतलब कुछ सिखाइए। 4 आवर का सेशन था, तो मैंने वहां पे गया। अब भाई मेरे हाथ पैर लगे कपने, अब मैं डर रहा हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने माइंड को शांत किया, रिलैक्स किया, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो अब में से कितने लोग हैं जो कि मेरे जैसे डरते हैं? अब में से कितने लोग हैं जो कि मेरे जैसे डरते हैं कहीं कुछ चीजें बताने के लिए? लेकिन मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, कि मैंने कैसे उसको हैंडल किया, मैं आपको बताऊं, जानना चाहते हो कि? लेकिन मुझसे पहले अभी कितने लोग पर्सन है, कितने परसेंट? 45 पीपल है। 45 पीपल से मैं सबसे जानना चाहता हूँ, कितने लोग नर्वसनेस होते हैं, कितने लोग घबराते हैं स्टेज पर जाने से पहले, या अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने से पहले, कितने लोगों का माइंड ब्लैंक होता है, कितने लोग कपने लगते हैं। मैं आज एक जबरदस्त टिप देने वाला हूँ आपको, जबरदस्त तरीका देने वाला हूँ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका नर्वसनेस खत्म होने वाला है आज की बात। 90% नर्वसनेस आज की बात खत्म होने वाला है। लेकिन एक बार कमेंट करो, यस यस यस, जल्दी से करो। नर्वसनेस, ओके ओके, मी राहुल जी, जल्दी से यार, एक बार एनर्जी के साथ, यस। अंजलि जी, ओके ओके, अमेजिंग 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 अमेजिंग। दीपक, ओके ओके, अमेजिंग। जल्दी 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 कमेंट करो, यस। शिवांगी जी, प्रिया प्रिया, ओके, अमेजिंग अमेजिंग। यार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। देखो, अब मैं बताता हूँ, कमेंट स्टॉप कर दो, आप सब लोग कमेंट करना बंद कर दो। जब आप जाओ, कहाँ पे, स्टेज पर जा रहे हो, स्टेज पे जाने से पहले आप 1 मिनट, मतलब 30 सेकंड के अंदर अगर आप ऑडियंस को इंगेज कर पा रहे हो तो बढ़िया है, अदरवाइज अगर आप इंगेज नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी ऑडियंस और आपका कनेक्शन नहीं बन पाता, कनेक्ट दोनों नहीं हो पाते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, और मुझे भी पता है। लेकिन जब अगर आपको डर लग रहा है,
तो आप हाथ ऐसे करो, आप हाथ ऐसे देखो, आप दोनों हाथ ऐसे करो, इसके बाद दोनों हाथ को ऐसे कर लो, इसके बाद ऐसे दबा के पकड़ो, और इसे अपने ऐसे मतलब इतना तेज पकड़ो, इतना तेज पकड़ो कि लगे कि आप मतलब सामने वाले बंदे को ना पता चले कि आप ऐसे हाथ दबा रहे हो, है ना। अगर सामने वाले बंदे को पता चल गया कि आप अपने हैंड को ऐसे से कर रहे हो, अपने दबा रहे हो, देन बंदा समझ जाए कि बंदा डर रहा है भाई। आपको ऐसे दोनों ऐसे हाथ दबा लेना है। जब आप इसको हाथ दबाते हो ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आपके माइंड डाइवर्ट कहाँ से होता है? अभी तक वो डर रहा था, आपका माइंड डर रहा था कि यार कैसे होगा, क्या बोलेंगे अगर, लेकिन आप जैसे ही अपने हाथ को इस तरह से दबा पकड़ते हो, दूसरे हाथ को इस साइड करते हो, वैसे ही आपका जितना डर होता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने आपके हाथ पर, आपके हैंड पर। उसके बाद और जो आपकी जो एनर्जी होती है, आपके जब पूरे बॉडी का फिगर होता है, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, और पूरे एनर्जी से एनर्जी निकलती है और यहाँ से निकल जाती है बाहर। नंबर 1 ट्रिक। नंबर 2 ट्रिक क्या है? नंबर 2 ये है कि आप अपने ऑडियंस को, आप अपने टीचर को, आप अपने बॉस को बॉस ना समझो, टीचर ना समझो, अपने ऑडियंस को अपनी ऑडियंस ना समझो, अपना समझ लो कि मेरे फ्रेंड है। आप जब तक उनके पास हो, अपना फ्रेंड समझ लो यार। अगर जैसे ही आप ఇంకా अपने మరి ఏదో फ्रेंड ఇల్లే समझ టైప్ गए, எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டாங்க என்கிட்ட எதுவும் இல்ல व्हाट प्रॉब्लम, आप अपनी ऑडियंस को जैसे ही समझ गए, समझ लो कि आप अपनी ऑडियंस को दोस्त समझ गए। आपको कोई भी डर नहीं होगा। बोल देना कि यार मेरा दोस्त है, कुछ भी बोलेगा, अच्छा बता पाऊंगा तब बोलेगा, बुरा बता पाऊंगा तब बोलेगा, बोलेगा। वैसे भी दोस्त बोलता है, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन दोस्त के लिए तो दोस्त है वो, चाहे जितना ग्रो कर लो। तो आप अपने दो ऑडियंस को दोस्त समझ जाओ कि मेरा फ्रेंड है यार, कुछ भी बोलेगा। ये दो तीन तरीके अपनाओगे जैसे ना, ये आप यूज करोगे, मैं एक अमेजिंग बता रहा हूँ, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आपका जो डर है, आपका जो नर्वसनेस है यार, खत्म हो जाएगा। नंबर 3, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। आपने मैं अभी आपको बोला कि फेल क्यों होते हैं, उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपेयर। मैंने पहले भी बताया था कि आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन आपने प्रिपेयर कर लिया वो बड़ी बात नहीं है, आपको पता चल गया कि बड़ी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग पास ऑनलाइन वेबिनार लेके, ऑफलाइन वेबिनार लेके, ऑफलाइन सेमिनार लेके, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं कुछ नए तरीके कैसे लूँ, क्या नई एक्टिविटी हो सकती है हमारी, क्या मैं इसमें ऐड कर पाऊँ कि जिससे कि लोग और मुझसे कनेक्ट हो पाए, एंगेज हो पाए। अगर आज आपके पास मैं आया हूँ वेबिनार लेने, आपको मैं कुछ सिखाने आया हूँ, इसका मतलब कि इसके पहले मैं 4 घंटे मैं अपना खुद दे के आया हूँ, इस पर सीख के पढ़ के आया हूँ, प्रैक्टिस करके आया हूँ, तब मैं आज आपके साथ डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों चीजें करो। अगर आप ये मत सोचना कि कभी यार मैं तुरंत पीपीटी बनाऊंगा, तुरंत प्रैक्टिस मतलब कि प्रेजेंट कर दूंगा, आप कभी अच्छा कर ही नहीं सकते हो यार। आज मैं आपको, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोच बीएसआर को जानते होंगे आप, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं बिहार के जो कि मैं उनको जानता हूँ, दिल्ली के ट्रेनर्स हैं, मुंबई के ट्रेनर्स हैं, जो कि ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है। जब मैं हम लोग उनके साथ बैठते हैं, जो उनके साथ बातें करते हैं, वो भी पढ़ते हैं यार, वो भी सीखते हैं। देन यहाँ पर कुछ सिखा नहीं आते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्वेश्चन आंसर रट रहे हो, चाहे आप अपना कोई सॉफ्टवेयर कवर कर रहे हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, प्रैक्टिस तो जरूरी है। प्रिपेयर तो कॉलेज वाले भी करा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस खुद से ही होती है, तो उसको प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। कहीं पर जाने से पहले एक सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमर टेलिंग स्टोरीज एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए और इफेक्टिव भाषा का यूज करना चाहिए। देखो, आज मैं यहाँ पे आया, बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं एक हिंदी स्पीकर हूँ ना, मैं एक इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, और मुझे मजा भी नहीं आता इंग्लिश बोलने में। आज मैं अभी ब्लेजर नहीं पहना हूँ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ब्लेजर नहीं पहन के आए, मुझे ज्यादा कंफर्ट होता भी नहीं है कि ब्लेजर पहनूं। ठीक है यार, एक सिंपल से यार, आप मुझे देखने नहीं आए हो, अगर आज मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, देन आप चले जाओगे। अगर आप अगली बार से मुझे पूछोगे नहीं यार, बात है कि आपको कुछ समझाना, बात है मुझे कोई आपको बताना कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, ना कि मेरा ड्रेस। तो आप जिस लैंग्वेज में सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझा पाओ, उस लैंग्वेज का यूज करो, और उस लैंग्वेज का यूज करो जो कि सामने वाले व्यक्ति अच्छे से समझ पाए। एंड उसके बीच बीच में आपको स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती है तो आपको सीखना चाहिए स्टोरी टेलिंग। आप आज के टाइम में तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, 4-5 वीडियो देखो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियो देखो, डीप में जाओ, थोड़ा सर्च करोगे, 1-2 घंटा परेशान होगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा कि आप स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना चाहिए। आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है,
ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखो अभी आज मैं आज की बात बता रहा हूँ, एक रील देख रहा था, अभी मैं इस पर ऐड नहीं कर पाया, मैं एक रील देख रहा था, एक ट्रेनर का था। ट्रेनर क्या बोल सकते हैं कि ये वाले इंडस्ट्री का था। वो बंदा इतना ज्यादा अपने हाथ पैर झटक रहा था, इतना ज्यादा चिल्ला रहा था। ऐसा नहीं करना है। लोग आपको नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हो। लोग अगर आप ऑफलाइन बता रहे हो, लोग आपको देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। अगर आप किसी को पहली बार समझा रहे हो ना, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो, आप देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। तो ये ज्यादा जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से बनाओ। आप कैसे चलते हो, कैसे बैठना है, क्या कॉन्फिडेंस वाले स्टेज होते हैं, कैसे बोलना है, कैसे अपने हाथों को करना है, वो सारी चीजें आप पर आपको फोकस करना चाहिए उन पर। कितने लोगों को लग रहा है कि यार समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, और मतलब इंजॉय कर रहे हैं, ना कि सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप मतलब सीखने के साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। एक बार कमेंट करो यार। देखो अगर हम आप सामने नहीं होंगे, अगर आप मेरे साथ कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो हमें नहीं पता चलेगा यार, है ना। तो हमें पता चलना चलना चाहिए कि यार हाँ मजा आ रहा है, ना कि हमें कोई मतलब कि बाउंडेशन दिया कि आपको यहाँ बैठना ही बैठना है। आपको यहाँ पर बैठने के साथ साथ मतलब सीखना भी है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं ना, थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि 30 टिप्स ऐसे क्या हैं जिसके थ्रू अगर हम यूज करते हैं तो हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर अगले 21 दिन में बन जाएंगे। बिलीव हो रहा है? बिलीव हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। मुझे पता है यार, आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है कि यार 21 दिन में कैसे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 21 दिन में पब्लिक स्पीकर बनेंगे, 21 दिन के अंदर बनेंगे। और आज जहां पर आज मैं हूँ, आप 21 दिन के अंदर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन चेंज होगी, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चेंज होगी, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, आपका बोलने का तरीका चेंज होगा। आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी नहीं आ रही तो आपको इंग्लिश नहीं आएगा, लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो चेंज हो जाएगी, आपका जो बिहेवियर होगा वो चेंज होगा, आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ये बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया तो भाई हमारा पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गई। बिलीफ सिस्टम पे सारी चीजें रुकी हुई है ना। तो बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। इसके बाद मैं देखता हूँ कि 30 टिप्स ऐसे क्या हैं रेडी होना जानने के लिए। ओके, 30 टिप्स। नंबर 1, राइट योर स्पीच। मान लो कि आज आप यहाँ पे सीखे, आफ्टर डेट आप कहीं से पे सिखाने गए हो, आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देने गए हो, अपने बॉस को दे रहे हो, अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? आप डरोगे, नंबर 1, मुझे पता है। या आप अपने टीचर्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप एक इंटर्नशिप लेने आप यहाँ पे आए हो, तो आप डरोगे, नंबर 1, मुझे पता है कि आप डरने वाले हो। तो आप डरो नहीं। क्या करना है आपको? अपने स्पीच को लिख लो। सबसे पहले उसको एक स्ट्रक्चर दो, अपने स्पीच को लिख लो, मुझे ये चीजें पॉइंट पॉइंट बताना है। नंबर 1, स्पीच को लिखना जरूरी है। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पर वीडियो शूट करते हैं या कोई भी कुछ भी सीखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज अगर आप जब लिखते हो तो आपके माइंड में 50% चली जाती है, फिर से जब उसे याद करते हो तो 80% चली जाती है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो 2-3 बार तो 100% चली जाती है। तो किसी भी चीज को लिखना जरूरी है। राइट योर स्पीच, अपनी स्पीच को लिखो। उसके बाद नर्वसनेस एक्सेप्ट करो अपनी, आपकी जो घबराहट है उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे घबरा रहा हूँ। मान लो कि आप गए इस आप अपने स्टेज पे जाने वाले हो, अपने क्लास में आपको बोल दिया कि सर आपको इंट्रोडक्शन देना है, आप जाने वाले हो और आपको लग रहा है भाई बहुत तेज डर, तो आप अपने आप को बोलो कि हाँ मैं घबरा रहा हूँ, एंड इस घबराहट को मैं झेल लूंगा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं घबरा रहा हूँ, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अपनी घबराहट को एक्सेप्ट कर लो भाई। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी घबराहट भाई चल जाएगी। बोले कि ये बंदा सही नहीं है भाई, मैं चलूं, इसने तो मुझसे ज्यादा टक्कर ले लिया। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च ऑन टॉपिक। आप जो भी जिस भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने वाले हो उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखो। अगर आप उसके बाद उसको अपनी नर्वसनेस को एक्सेप्ट करो, उसको उस टॉपिक को रिसर्च करो कि इस टॉपिक में और क्या ऐड कर सकता हूँ। मान लो कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं क्या कहानी सुना सकता हूँ, क्या क्या बता सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बी प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको हर एक चीज काम करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा नीड है, और प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर टेक्निक, आपको प्रिपेयर करना है। कई टेक्निक्स हैं उनको यूज करना है, जैसे कि 4P टेक्निक हो गई, एंड मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। प्रॉपर स्लीप कर सकते हो आप। देखो अगर आपको कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन देने जाना है या कोई आपको वीडियो शूट करनी है, आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना है, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, देन आपको प्रॉपर स्लीप जरूरी है यार। अगर आप 4-5 घंटे 6 घंटे सो रहे हो तो आप
आपका भरपूर नींद लेना जरूरी है। अदरवाइज जब आप बोलते रहोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। देखो जो कुछ चीजें इसमें है जो कि मैं उस लेवल से बनाया हूँ, जो कि पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, जो कि एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो कि एक कोच बनना चाहते हैं, ऑलरेडी मैं उस लेवल से रखा हूँ। बट अगर आपके पास जो भी है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसको इसमें लीजिएगा, बाकी जो ना हो उसको ना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी आपका ड्रेसअप आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी ऑडियंस कौन सी है? कभी कभी क्या होता है कि आप गए हो मंदिर, पहन के चले गए जीन्स, ठीक है। आप करवा रहे हो मेडिटेशन, ठीक है, आप पहन के बैठे हो जीन्स, ऐसा नहीं करना है। आप करवा रहे हो सेल्स पे, किसी कंपनी में ट्रेनिंग दे रहे हो, आप मतलब पहन के चले जाए, गए धोती कुर्ता है, मंदिर वाला ड्रेसअप चले गए। आपका ऐसा नहीं है। आपको ड्रेस आपका प्रॉपर आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ड्रेस आपका आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग है, देन आप जबरदस्त उनसे कनेक्ट हो पाओगे। अगर आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो गए, समझ लो कि आपकी ऑडियंस कनेक्ट रहेगी आपसे। इसके बाद हमारा आठवां है, नंबर 8 पॉइंट हमारा, नो योर ऑडियंस। मैंने आपको पहले बताया कि आपके ऑडियंस को जानना जरूरी है। आपके ऑडियंस जॉब वाले हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्समैन हैं, कौन से हैं, एम्प्लॉय हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, इंटेंसिव वाले स्टूडेंट हैं, या मतलब कि फ्रेशर स्टूडेंट हैं, या फ्रेशर जॉब वाले हैं, कौन है आपको पता होना चाहिए। लेडीज हैं या जेंट्स हैं या फीमेल है मेल है, कौन से आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली। आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तब आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे, उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आप नहीं पता होगा, देन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आई कनेक्ट कॉन्टेक्ट, सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग में। आई कनेक्शन आपका जरूरत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जब आप अपनी ऑडियंस से मिलते हो, आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका आई कांटेक्ट अगर आपके ऑडियंस से है, देन आप उसको गजब से कनेक्ट रह पाओगे, उसके एंगेज करते रह पाओगे। देखो, मैं यहाँ पे आप सबको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप ऐसा न मत करना किसी से, कि आज मैं आपको बता दिया कि आपको आई कांटेक्ट होना जरूरी है। आप सामने वाले व्यक्ति से आई कांटेक्ट बना बना के रखना है। आप ऐसा ना करना कि उसको घूरने लगना, अदरवाइज आपको एक थप्पड़ गिर जाएगा, है ना। तो आपको घूरना नहीं है, आपको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखना है, उसके बाद अपनी नजरों को हटा लेना है। अदरवाइज सामने वाले व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि आप उसको अनकंफर्ट फील हो रहा है। लेकिन आई कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आज मान लो कि आप मेरे टीचर हो, मैं आपके साथ सामने आया हूँ कुछ क्वेश्चन पूछने, पुटअप करने आया हूँ। देन आपके सामने आया मैं, नीचे अपना सिर डाउन करके खड़ा हो गया, तो आपको मजा आएगा। अगर मैं आपसे मतलब आपके वाइफ में कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ, हाँ, तो आप बताओगे कि हाँ, ये बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। जब आप आई कांटेक्ट करते हो ना किसी से, आपको लगता है कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। एक अच्छे लिसनर बनो। अगर आप एक अच्छे लिसनर बन रहे हो, देन आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो। एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक अच्छा लिसनर भी बनो भाई, एक अच्छा लिसनर बनो। एक अच्छा स्पीकर बन पाओ ना बन पाओ वो अलग वे है, लेकिन एक अच्छा लिसनर बनो। जब आप एक अच्छा लिसनर बनते हो, तो आप अच्छे से सोच पाते हो, समझ पाते हो, अच्छा डिसीजन टेकर बन पाते हो। आप बहुत सारी चीजें अच्छी कर पाते हो। ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन ज्यादा सुनना है। ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन ज्यादा सुनना है ना, ये काम करना है। तो एक अच्छे लिसनर बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी टॉपिक हो, मान लो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपका जो भी टॉपिक हो, आप अपने ऑडियंस को उससे कनेक्ट करके बताएं कि मैं ये हूँ, मैं करता था। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आप मुझसे पीछे कनेक्ट हो पाए, पीछे से रेफर रहे। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं जब क्लास 9th में था, क्लास 8 में था, तो मैं बोल नहीं पाता था, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। तो मेरा टॉपिक क्या है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक अच्छा स्पीकर कैसे बने, है ना। एक कनेक्शन उससे बना के रखो कि आप उससे रिलेट करते हो, और अपने ऑडियंस को भी उससे रिलेट करवाओ कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें करनी ही चाहिए आपको ना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका इंट्रोडक्शन एज ए स्टोरी देना है। ना कि बोल देना कि माय नेम इज अजय यादव, आई एम फ्रॉम प्रयागराज यूपी एंड नाउ आई एम परफॉर्मिंग बीटेक। तो ये सारी चीजें नहीं करना है ना। तो आपका जो भी इंट्रोडक्शन है उसको एज अ स्टोरी आपको प्रेजेंट करना है। और जब आप एज अ स्टोरी प्रेजेंट करते हो, तो लोग आपकी बातों को रिलेट कर पाते हैं, आपकी बातों को इमेजिन कर पाते हैं कि ये बंदा ऐसा सा होगा, हाँ ऐसा। ये चीजें है ना, आपको एज ए स्टोरी प्रेजेंट करना है। कोई भी चीजें हैं, स्ट्रक्चर योर टॉपिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका टॉपिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अपने ऑडियंस को एब्जर्व करते रहो, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस क्या बोल रही है, आपकी ऑडियंस का क्या इंटेंशन है। आप कहीं आपकी ऑडियंस बोरिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आपकी ऑडियंस आपसे जाने के लिए तो नहीं बोल रही है, कहीं आपसे लोग डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, अपनी ऑडियंस को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उसको क्या पसंद आ रहा है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, वो चीजें
आपको ध्यान में रखना चाहिए, देन आप बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, अपनी ऑडियंस को ऑब्जर्व करते रहो, उसको अलग अलग टाइम पे उसको उसके अकॉर्डिंग काम करते रहो कि उसको क्या चाहिए। उसको अगर बोर हो रही है तो उसको एंटरटेन कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा एंटरटेन हो गए तो उसको थोड़ा सीरियस मोड में ला सकते हो। अगर लोग आपको मजा नहीं आ रहा तो अपने टॉपिक को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाओ, अमेजिंग बनाओ, वो चीजें कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरी टेलिंग आपको सीखना चाहिए, किसी भी चीज को कैसे स्टोरी के फॉर्म में करना है आपको वो जानना जरूरी है। जब आप किसी भी व्यक्ति को स्टोरी बताते हो तो आपसे वो रिलेट कर पाता है। टोन पिच, आपका टोन कैसा है, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने 10 लोग बैठे हैं और आप 100 लोगों वाली टोन निकाल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब एक अच्छा स्वर निकालना चाहिए, अच्छा टोन निकालना चाहिए, एंड आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, लोगों को अनकंफर्टेबल हो रहा है और लोग आपसे इरिटेट हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है, आपका टोन कैसा होना चाहिए आपको जानना जरूरी है कि मुझे अपने टोन पे कैसे पिच करना है। ठीक है, थिंक पॉजिटिव, आपको ऑलवेज अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये चीजें करनी है। अफर्मेशन कैसे करना है, अफर्मेशन आप अपने जो भी आपका ड्रीम है आप उसके बारे में सोच सकते हो, लिख सकते हो। एंड अफर्मेशन अगर आप यूज करना चाहते हो आप, तो आप 369 टेक्निक यूज कर सकते हो, एंड फाइव 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 यूज 555 टेक्निक यूज कर सकते हो, 10x3 टेक्निक यूज कर सकते हो। आप अफर्मेशन के लिए ये चीजें कर सकते हो। जब आप अफर्मेशन देते हो कि मुझे पाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे एक चीज है, मुझे जॉब करनी है, मुझे इस कंपनी में जॉब पाना है, मुझे अपने कॉलेज में क्लास में टॉप होना है, मैं अपने आप को टॉपर देखो। ठीक है, विजुअलाइजेशन, सब एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए विजुअलाइजेशन की, मुझे ये पाना है, मैं ये कर रहा हूँ। आप विजुअलाइज करो, भले ही आप ना पाओ, लेकिन आपका माइंड आप जैसे सोचते हो आप वैसा कर पाते हो, है ना, जैसे आप सोचते हो आप वो चीजें अचीव कर पाते हो। विजुअलाइजेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है। आप विजुअलाइज करो पर डे, आपकी आज हैसियत नहीं है कि आपकी मतलब कि 10 करोड़ कमा पाओ, 50 करोड़ कमा पाओ, 1,000 करोड़ का कंपनी बना पाओ। भले ही आज आपके पास 10 रुपए नहीं है, लेकिन आप विजुअलाइज करो। हो सकता है कि आपका गोल लंबा हो सकता है कि आपका गोल बड़ा हो, लेकिन आप विजुअलाइज कर रहे हो, एक दिन आपके माइंड में मतलब कि बैठ जाएगी कि हाँ यार मुझे ये चीजें अचीव करना चाहिए, मैं कर पाऊंगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसको आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो सांसें हैं रुकती हैं अच्छे आपको बोलने में। टाइम मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपको पर डे शेड्यूल लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा भी एक मैं चार्ट पेपर लगाया हूँ अपने दीवार पर। देन उस पर मैं टाइप में पर डे लिखता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है ना, देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा इधर आपको। जैसे आपको छोटी छोटी गलतियां हो गई आप प्रेजेंटेशन वगैरह देने में, तो आप उसको इग्नोर कर दो। अब रोकना नहीं है अपने प्रेजेंटेशन को, आपको इग्नोर करना है ऑलवेज। अगर आप बीच बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कीप स्माइल, आपको सीरियस मोड में नहीं कुछ बोलना है, ठीक है भाई, है ना। सीरियस मोड में अगर आप बोल देते हो तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सीरियस मोड में नहीं बोलना है, ऑलवेज स्माइल करते रहो। जब आप स्माइल करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, आपसे ज्यादा अच्छे से वो बात कर पाते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसा है रखना चाहिए, ये चीजें आपको जरूरी है। ऑलवेज लर्नर, आपको ऑलवेज सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि आप इंटर पास कर लिए या स्कूल पास कर लिए या आप कॉलेज में निकल गए तो आप आज से बंद कर देंगे लर्निंग। आपको ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखते रहना है, आपको ऑलवेज सीखते रहना है, बहुत ज्यादा जरूरत है ना आपको। जब आप ऑलवेज सीखते रहते हो, सीखते रहते हो, सीखते रहते हो, देन यार आप जो 95% पीपल हैं आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर बन जाते हो, है ना। जो 95% पीपल हैं आप उससे जो बहुत ज्यादा बेटर बन जाते हो। मान लो कि आज मैं भी बुक्स में वो सारे रखे हूँ, लेकिन मैं भी दिखाता हूँ आपको। मान लो कि आज मेरी डायरी है, अगर इस डायरी में 200 पेज है, अगर मैं पर डे 10 पेज पढ़ता हूँ तो 200 पेज मैं 20 दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा, 200 पेज मैं 20 दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा। और तो और, लेकिन क्या मेरे साथ के जो 50 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं मेरे आसपास के, क्या उनमें से पर डे 20 पेज पढ़ने वाले हैं या 10 पेज पढ़ने वाले हैं? और आप अगर महीने में 20 दिन में एक बुक्स खत्म कर रहे हो या एक महीने में एक बुक्स खत्म कर रहे हो, तो मैं एक साल में आप 12 किताब खत्म कर रहे हो। एक साल में आप 12 किताब मतलब 12 किताब चट कर रहे हो, आप उसको सीख गए, उसको उतनी नॉलेज आप लोगों से ज्यादा आपके पास हो गई। तो आपको ऑलवेज लर्नर बने रहना है। देखो लोग क्या सोचते हैं कि मैं जब स्कूल से निकल जाऊंगा, जब मैं कॉलेज से निकल जाऊंगा तो मैं मतलब फ्री हो जाऊंगा, लेकिन तब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं एकदम मतलब तब मैं अपने एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को। लेकिन जो आपकी स्कूल की बाद की लाइफ है, जो आपकी कॉलेज की बाद की लाइफ है, वो जब आप इस सारी चीजों से निकल जाते हो,
जब आप जॉब करने आते हो, जब आप बिजनेस करने आते हो, ये रियल लाइफ होती है। और यहाँ पर आपको सीखना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है यार। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो भाई, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सीखते रहना है। एक्शन प्लान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्शन प्लान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक्शन प्लान जरूरी है। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, है ना। अच्छा, कितने लोग हैं कि जितने लोग मैंने बोला कि आज के बाद एक्शन लेंगे, एक बार कमेंट में मुझे यस बोले यार, लास्ट है ना, फीडबैक लेंगे। ओके ओके, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्शन प्लान कितने लोग लेंगे एक बार मुझे जबरदस्त बताओ यार। ट्राई मत करना, ट्राई मत करना, ट्राई से कुछ नहीं होता भाई, ट्राई से कुछ नहीं होगा भाई। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन बन करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। अगर आप ट्राई करोगे ना, ट्राई तो भाई मैं बचपन से कर रहा हूँ, ट्राई मत करना। ऑलवेज डेडिकेटेड रहना कि मुझे करना ही करना है, अब मुझे किसी भी हालत में करना है ना। तो आपको करना ही करना है। मैं आपको एक जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ, टाइम भी लगभग लगभग 1 आवर होने वाले हैं, सॉरी। तो अब मैं, देखो, जो एक शराबी होता है, जब गांव में बारात लोग जाते हैं ना यार, बारात लोग जाते हैं तो सबसे पहले जितने भी उसमें के शराबी होते हैं, जितने भी नशेड़ी पीपल होते हैं, है ना, जो भी एडिक्शन होते हैं, किसी भी चीज की लत लगती है, वो सबसे पहले शराब की दुकान पे दिखते हैं। कितनी भी दुकान दूर बारात गए हो, सबसे पहले वो शराब की दुकान पे दिखते हैं। उनका गोल होता है यार कि मुझे चलना है तो मुझे ढूंढना है, कुछ भी कर लेंगे। उनका गोल होता है, वो डेडिकेटेड होते हैं कि मुझे करना ही करना है, चाहे कैसा भी हो। आप एक पैशनेट रहो, अपने गोल को यार अच्छे से रखो, देन आप कुछ कर पाओगे। आपको एक्शन प्लान लेना है, ना कि आपको ट्राई करना है। आज जिससे ही सीखना शुरू करो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अच्छी है, तो आपको इंटरव्यू स्किल कभी नहीं, वो नहीं हो सकती है। मैं आपको अपनी कॉलेज में बताता हूँ, मैं भी एकेडमी में पढ़ता हूँ कैंपस में। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं भाई। अभी मैं एकेडमी, यहाँ पे कंपनी आई, 200 बच्चे बैठे, 5 बच्चे हो रहे हैं। बच्चे कहाँ छट जा रहे हैं, इंटरव्यू में छट जा रहे हैं। मतलब वहां पे आपको बाहर कर दे रहे हैं इंटरव्यू से। इंटरव्यू से क्यों बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, उन्होंने कभी क्लास लिया ही नहीं है, कभी अपने ऊपर सीखने के बाद फोकस किया ही नहीं है। तो आपको एक्शन प्लान आपको भी लेना चाहिए, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 टिप्स थे, सॉरी 30, ओके 25 टिप्स थी, जो कि मैंने आपको सिखाया। कितने लोगों को लगा कि यार ये चीजें अप्लाई करने से मैं एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी बन जाएगी, कितने लोगों को लग रहा है। मैं 21 डेज का एक्शन प्लान बताने वाला हूँ कि आप क्या करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। एक बार मुझे कमेंट में बता दो जल्दी से। 48 पीपल जुड़े हुए हैं लास्ट तक यार, अमेजिंग अमेजिंग यार। आप लोग जबरदस्त चीजें सीख रहे हो। एक बार बताओ मुझे, एक बार कमेंट करो सब लोग, कितने लोग देखते हैं कि कितने लोग अभी लास्ट तक जुड़े हुए हैं एंड सुन रहे हैं, कितने लोग। ऐसा तो नहीं है कि कनेक्ट करके बगल में मोबाइल रखे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक बार मुझे बताओ, कमेंट करो जल्दी से। हाँ, कमेंट आने लगे, ओके ओके, विल गो टू डू, ओके। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अंशिका अंशिका जी, राहुल जी, साना जी, ओके ओके, अमेजिंग यार, अमेजिंग। इतने लोग सुन रहे हैं यार, डेडिकेटेड हो के इतना। एक देखो, मैं आप सबसे इसलिए इसलिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं एक राजस्थान की लिए कंपनी थी, उसके लिए मैंने वर्क किया एंड वहां पे मैं आपको बताऊं भाई, मेरे 4 घंटे का सेशन चले, 4 घंटे वहां पे लोग थे। इसका मतलब कि आज के टाइम पे जो यूथ है, वो बदलाव के लिए मतलब कोई रेडी है, उसको कोई बदलने वाला चाहिए। अगर आप में से 1 घंटे कोई रुका हुआ है, 1 घंटे कोई ऑनलाइन सुनने वाला है, इस रील्स की दुनिया में सीखने वाला है, तो इसका मीन्स कि आप कुछ बदल रहे हो भाई, कुछ सिखा रहे हो अपने लाइफ को, कुछ मतलब कि बदलने वाले हो। आप उस 95% लोगों से हट रहे हो, आप 5% लोगों में आ रहे हो, है ना। मैं आगे चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि 21 डेज का एक्शन प्लान क्या होगा। 21 डेज का एक्शन प्लान क्या होगा, इसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपसे 1 to 1 बातें करता हूँ, ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो 21 डेज का एक्शन प्लान, नंबर 1, आपको ब्रीथिंग टेक्निक, मतलब आपको मेडिटेशन करना है 21 डेज। 21 डेज आपको मेडिटेशन करना है। ब्रीथिंग टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर टेक्निक ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रीथिंग टेक्निक एंड मिरर टेक्निक दोनों आपको यूज करना है। मिरर टेक्निक कैसे यूज करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रीथिंग क्या है, आपको बैठना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मैं आप एक प्रकार से सोच सकते हो कि आपको मेडिटेशन करना है पर डे। एंड दूसरा, मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक क्या है, आप शीशे के सामने जाओगे, मिरर के सामने, उसके सामने आप एक टॉपिक लेके जाओगे। आप वहां पे, अब मान लो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, आप वहां पे जाओ, आप वहां से अपने आप से कोशिश को आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। मान लो कि आप किसी अच्छे टीचर से, मान लो कि आपके कॉलेज में ट्रेनर है, कोच है ना, कॉलेज में ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट टीचर वगैरह होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो। मान लो कि आपको सोशल मीडिया पे कोई पसंद है,
जो कि आपकी लाइफ के लिए अच्छा ग्रोथ दिलवा सकता है, आप उसको ऑब्जर्व करो कि बंदा कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, इसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्या करता है, इसका रूटीन क्या होता है। आप ये सारी चीजें करोगे। देखो दोस्त, मान लो कि आप एक अच्छे अपना रोल मॉडल जिसको चुन रहे हो, आप ऐसा तो नहीं है कि किसी एरो गैरो को चुन लोगे कि आता जाता कोई बंदा आपका रोल मॉडल हो जाएगा। कोई अच्छा पर्सन होगा ना। तो जो अच्छा पर्सन है उसके बारे में सोचो कि उसका पूरा दिनचर्या निकालो कि आप पर डे का रूटीन क्या है। अगर आप उसकी रूटीन को समझ गए, आप उसके चलने के, उसके बैठने के, उसके उठने के, वो सारी चीजें समझ गए, देन आप यार, हो सकता है कि बंदा 100% हो, आप उसको उसका 100% ना फॉलो कर पाओ, 100% अचीव ना कर पाओ, आप 50% तो कर पाओगे। 50% तो आप ग्रो हुए ना, 50% हुए ना। आप 50% उससे हुए, 50% अपने आप से करोगे, 100% हो गया। आप जहां जाना चाहते थे आप वहां पे पहुंच गए। आपको ये चीजें करना है। इसके बाद आप वीडियो टेक्निक यूज कर सकते हो। आपको वीडियोज बनाने पर डे 1-2 मिनट के, ऐसा कर सकते हो। इसके बाद आप ऑडियो टेक्निक यूज कर सकते हो। मतलब देखो, आप ये मत सोचो कि मैं कैसा बोल पा रहा हूँ, कैसा नहीं बोल पा रहा हूँ। आप सिर्फ बोलो डालो, बोलो डालो, बोलो डालो, बोलो डालो। आप ज्यादा नहीं, 1 महीने कर लो भाई। 1 महीने में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, पहले दिन का वीडियोज देखना, फर्स्ट डे का एंड लास्ट डे का देखना, आपके उसमें लगभग लगभग हजारों परसेंट का, 1000% का डिफरेंस आपको दिखेगा। 1000% का डिफरेंस दिखेगा। तो ये चीजें थी, ये 4 चीज, 3-4 चीजें आपको अप्लाई करना है, और जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है ना। जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। कितने Yeah, so I would like to thank you. And as today we got the opportunity to listen an interesting and thought-provoking discussion on the art of public speaking, the amount of expertise and passion displayed by Ajay sir really enhanced our grasp of the topic. Sir skillfully imparted his knowledge, leaving us with insightful conclusions and motivational concepts. His interesting presentation captured our attention and motivated us to learn more. We appreciate the effort you put into preparing the enlightening session.